شرین کا سچ جاننے کے بعد فہام قریشی نے نہ صرف انگوٹھی اتار کر شرین کے منہ پر ماری بلکہ شرین کا راز سب کے سامنے فاش کر دیا۔ ایک دفعہ پھر انس اور انسا کی عزت اچھالنے کے لیے کسی نے وہ ویڈیو دوبارہ سے وائرل کر دی ہے۔ جتنے بھی مہمان شرین اور فہام کی انگیجمنٹ میں موجود تھے سب کے فونوں پر وہی ویڈیو چل رہی ہے۔ کیا یہ گھٹیا کھیل شیان کا ہے یا پھر اب انسا اور انس کا سب سے بڑا اور کوئی ان چھپا ہوا دشمن سامنے آ چکا ہے؟ کیونکہ اب انسا کو شیان کا سچ پتا چل چکا ہے۔ انسا نے نہ صرف شیان کی اور اس کی ماں کی باتیں سن لی ہیں بلکہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انس خود انسا کو ساری سچائی بتا دے گا کہ ویڈیو بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیان تھا، کیونکہ انس اور انسا کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی یہ ویڈیو وائرل کسی اور نے نہیں شیان نے کی ہے۔ جیسے ہی یہ سچ سب کے سامنے آئے گا تو انسا بھاگتی ہوئی مہمانوں کے پاس جائے گی اور ان کے سامنے ایک ایسا راز فاش کرے گی جو نہ صرف شرین کی زندگی برباد کر دے گا بلکہ شیان کا بھی سارا مستقبل پانی میں ڈبو دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب انسا ایک بہت بڑا قدم اٹھائے گی کیونکہ انسا خود اپنے ہاتھوں سے شیان کی جان لینے والی ہے۔ جیسے ہی شیان نے انسا کے کردار پر انگلی اٹھائی تو انسا نے بھی بندوق اٹھا لی ہے۔ کیا اب انسا کی گولی شیان کے آر پار ہو جائے گی؟ کیونکہ شازیہ تو اب انسا کے پیروں میں گر کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے والی ہے۔ کیا مرسلین کی فیملی کا برا ٹائم شروع ہو چکا ہے؟ شرین کا سچ جان کر اور یہ جان کر کہ شیان کتنا گھٹیا انسان ہے، کیا فہام اور اس کی فیملی شرین جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے گی؟ آخر کار یہ ویڈیو اس دفعہ وائرل کس نے کی؟ کیا مرسلین کی فیملی کا مکافات عمل شروع ہونے والا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ میں تو انس جیسے بیوقوف انسان پر حیران ہوں کہ وہ لوگ تمہیں منہ تک لگانا نہیں چاہتے اور تم ان کے کام کرتے پھر رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ انس جیسا گھٹیا ترین انسان کبھی اور کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سی بھی سیلف ریسپیکٹ انس کے اندر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسا بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ زمین پر گرا دے۔ یہ وہی انس ہے جو انسا سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی بھی بولنے سے نہیں روک سکتا، تمہیں اگر کوئی کچھ کہے اینٹ مارے تو پتھر مارنا، اور یہی انس بار بار انسا کو جواب دینے سے روک رہا ہے جبکہ انس کا حق بنتا تھا کہ وہ خود شیان اور اس کی ماں کا منہ توڑ دیتا، اور اگر خود سے نہیں ٹوٹ رہا تھا تو یہ کام انسا کو کر لینے دیتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ ساری کی ساری غلطی صرف اور صرف انس کی ہے جس کی سزائیں اب انسا بھگت رہی ہے۔ اتنی بے عزتی ہونے کے بعد بھی انس شرین کے انگیجمنٹ کی ساری ارینجمنٹ دیکھ رہا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ تائی جان کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ آخر کار انس نے تائی جان سے اچھی خاصی بے عزتی کروا لی اور میں تو چاہتی ہوں کہ تائی جان اور بھی زیادہ انس کی بے عزتی کرتی کیونکہ انس جیسے ڈھیٹ انسان کو بے عزتی لگتی نہیں ہے، اور اگر انسا انس کی یہ عزت افزائی ہوتی دیکھ لیتی تو دو تھپڑ انس کے منہ پر جڑتی اور کہتی کہ تم کیوں ان کے نوکر بنے ہوئے ہو جبکہ وہ تمہیں منہ تک لگانا نہیں چاہتے۔ اب تائی جان سے بے عزت ہونے کے بعد انس سیدھا دادا ابو کے روم میں جائے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اب انس اور انسا دونوں ہی انگیجمنٹ پارٹی میں نہیں جا سکتے کیونکہ اگر وہ لوگ گئے تو تائی جان وہیں کھڑے کھڑے ان کی بے عزتی کر دے گی۔ اسی لیے انس دادا جان سے کہے گا کہ وہ اس انگیجمنٹ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن مرسلین آئے گا اور کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تم اور اپنی بیوی کو لے کر لازمی آ جانا۔ انس یہ نہ ہو کہ سب لوگ ہمیں یہ سمجھے کہ ہم تمہارے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارا مذاق اڑانے کی بجائے پارٹی میں لازمی آ جانا۔ اور مرسلین کے کہنے پر انس انسا کو لے کر دادا جان کے ساتھ ہی انگیجمنٹ پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ اب سب لوگ شرین کی شادی کے لیے راضی تو ہو گئے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو اب ان کے کیے کا حساب تو دینا ہی پڑے گا، لیکن شرین کی ایک غلطی اور اس کی نہ صرف زندگی برباد کر دے گی بلکہ شرین کے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے کیونکہ اب شرین کی انگیجمنٹ بھی ہوگی اور شرین کافی زیادہ خوش ہوگی، لیکن فہام سمجھ جائے گا کہ شرین کے گھر والے خاص کر کے اس کا بھائی اور باپ اس شادی سے خوش نہیں ہے، اور تب فہام شرین سے پوچھ لے گا کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارے گھر کے مرد اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے؟ شرین کہے گی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا، ورنہ تمہیں پتا ہوتا کہ بہن کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے، بس میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں نا، اسی وجہ سے بابا اور شیان دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔
बाबा तो शियान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से वो लोग मेरी शादी से इतना ज्यादा खुश तुम्हें नजर नहीं आएंगे। लेकिन फहाम कुरैशी सबके चेहरे पड़ चुका है और उसे अच्छे से समझ आ गई है कि सब लोग शादी से खुश नहीं हैं, बल्कि शरीन ने धक्का मुक्की करके इस शादी के लिए मनाया है। लेकिन फहाम कुरैशी कहेगा कि अच्छा ही है, अगर शरीन जिद करके ये शादी करे तो मेरे लिए तो और भी बेहतरीन है। जैसे ही शरीन और फहाम की एंगेजमेंट होने लगेगी तो उसी वक्त अनस भी अंसा के साथ शादी में शामिल हो जाएगा। शरीन को अनस और अंसा का यूं सज धज कर आना उसकी शादी में बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि शरीन की सास शरीन के पास आएगी और कहेगी कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है, भाभी है तुम्हारी, तुम्हारे कजन की बीवी है, बहुत ही कोई अच्छी लड़की है, मैं तो एक ही पल में देखकर इसे पहचान गई थी कि ये सबसे अच्छी लड़की होने वाली है। और ये बातें सुनकर शरीन का खून खोलने लगेगा, हसद की चिंगारी जल जाएगी। वो तो पहले से ही जली हुई थी, लेकिन अब हसद की आग लग जाएगी। उसे अंसा की तारीफ वो भी अपनी सास से बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो किसी के सामने तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर फहाम को पता चला कि शरीन ने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की है तो उसी वक्त फहाम ये रिश्ता खत्म कर सकता है। इसीलिए शरीन अपना गुस्सा अंदर दबा लेगी। इस सब में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो अनस, अंसा और दादा जान है, जहां अंसा दादा जान के साथ मिलकर तस्वीरें खिंचाएगी और काफी ज्यादा खुश होगी। और ये चीज भी शरीन को बिल्कुल हजम नहीं होगी। जैसे ही फहाम वहां से उठकर जाएगा और शरीन की दोस्त उसके पास आकर बैठेगी तो वो शरीन से कहेगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अभी तो 3-4 दिन पहले तुम फहाम से मिली थी और अब शादी चल रही है, मुझे तो बताओ कि तुमने ये सब कुछ किया कैसे। शरीन खुशी के मारे अपनी दोस्त से कहेगी कि शरीन ने किसी चीज की ख्वाहिश की हो और उसे मिली ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे अच्छे तरीके से जानती हो कि फहाम मेरी जिद बन चुका है और अब मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी। शरीन की दोस्त समझ गई है कि ये जिद अब बहुत जल्द बड़े बड़े झटके देने वाली है। शरीन को इतना खुश देखकर शाजिया भी मुरसलीन से कहेगी कि आप देख रहे हैं मेरी बेटी के चेहरे पर कितनी खुशी है, मैंने शरीन को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। आखिर मेरी बेटी का चेहरा कितना खिला हुआ है। आप बहुत गलत सोच रहे थे मुरसलीन, मेरी बेटी फहाम के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि इनको नहीं पता कि फहाम अब शरीन का कितना बुरा हशर करने वाला है। जो इंसान जो डिजर्व करता है उसे वही मिलता है। शरीन फहाम ही डिजर्व करती थी। एंगेजमेंट में सब लोग खुश होंगे, लेकिन ये चीज अब अगर किसी से हजम नहीं होगी तो वो शियान, क्योंकि शियान के बारे में सारे के सारे गेस्ट बातें करेंगे और कहेंगे वो भी फहाम कुरैशी की माँ से कि तुमने इन लोगों में रिश्ता कर लिया, ये तो वही लड़का है ना जिसने तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट करके उसे छोड़कर चला गया था, तुमने ऐसे लोगों में शादी अपनी बेटे की कैसे कर ली, जिसका भाई ऐसा है उसकी बहन कैसी होगी। और ये बातें शियान से हजम नहीं होगी। शियान सारी एंगेजमेंट पार्टी छोड़कर भागता हुआ बाहर निकलेगा और चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। शाजिया उसके पीछे आएगी और कहेगी कि तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट चल रही है और तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है। और शियान यहाँ अपनी माँ को कहेगा कि उसके बारे में आप जानती भी हैं कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। वो घटिया फहाम कुरैशी के गेस्ट सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ जो मरते हुए इंसान को वहीं पर छोड़कर आ गया था और मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ वहाँ पर खड़ा होकर। आप लोगों ने ऐसे लोगों में रिश्ता करके मेरी इज्जत कम कर दी है। और वो देखो अनस और अंसा कितने खुश नजर आ रहे हैं। दिल करता है कि अभी जाकर इनका भांडा सब लोगों के सामने फोड़ दूं। पहले तो आप लोगों ने उन 2 लोगों को लाकर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया और अब इस फहाम कुरैशी और इसकी फैमिली को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। अब मुझे पता नहीं कब तक ये बातें सुननी पड़ेंगी। आप सोच भी सकती हैं कि मेरी कितनी तजलील कर रहे थे वो लोग खड़े होकर, और सब लोग उस अनस और अंसा की तारीफें कर रहे थे। 1 मिनट लगेगा मुझे कि मैं जाकर सब लोगों के सामने इनकी इज्जत उतार दूं और ये सारी बातें अंसा भी खड़ी होकर सुन लेगी। अंसा कहेगी कि क्या कह रहे थे तुम, कैसे हमारी इज्जत उतारने के चक्कर में हो। मुरसलीन भी पीछे पीछे आएगा और कहेगा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, अपनी जुबान को लगाम दो, मैंने तुम्हें कितना मना किया है कि अपनी जुबान को कंट्रोल रखा करो। लेकिन अंसा आगे होगी और कहेगी कि नहीं नहीं अंकल, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या कह रहा था, बताओ जरा क्या कह रहे थे तुम। शियान कहेगा कि मैं तो वही बोल रहा था जो तुम हो, जिस तरह की तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम कितनी घटिया लड़की हो। ये सुनते ही अंसा ना सिर्फ गुलदान उठाएगी और कहेगी कि मैं बताती हूँ कि मैं कैसी लड़की हूँ, लेकिन
शाजिया भागती हुई आएगी और अंसा के हाथ से गुलदान पकड़ेगी और कहेगी कि अरे अरे रुको तो सही, क्या कर रही हो तुम, एक दफा हमारी बात तो सुनो, हम शियान को समझाते हैं, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, रुक जाओ एक दफा। और अनस भागता हुआ अंसा के पीछे आएगा और कहेगा कि अंसा यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, चलो मेरे साथ। जहाँ अंसा कहेगी कि मैं कहीं नहीं जा रही, तुम जानते भी हो कि ये सब लोग मिलकर यहाँ पर मुझे क्या कह रहे थे, तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर आइंदा ऐसी कोई भी बात होगी तो तुम इनके मुंह तोड़ दोगे, तो मुंह तोड़ो इसका, दो इसे मुंह तोड़ जवाब, बल्कि इसका मुंह ही उतार दो। जहाँ अनस कहेगा कि क्या कह रहा था ये, और तब अंसा कहेगी कि ये कह रहा था कि ये वो वीडियो सबके सामने दिखा देगा और हमारी इज्जत उतार कर रख देगा। अनस भागता हुआ आएगा और कहेगा कि ये जिंदा रहेगा तो वीडियो दिखाएगा ना, लेकिन मुरसलीन उसी वक्त अनस को पकड़ लेगा और कहेगा कि ये कुछ नहीं करेगा। शियान, अगर तुमने ऐसी कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन इससे पहले कि शियान कुछ भी करता, मुझे लगता है कि ये घटिया हरकत शरीन करेगी, क्योंकि वो जल बुन गई है कि किस तरह से अनस और अंसा की तारीफ हो रही है और उसकी सास भी अंसा को पसंद कर रही है। ये घटिया काम शरीन का होने वाला है। शरीन ही अब अनस और अंसा की वो वीडियो सबके सामने लाएगी ताकि सारे गैस अंसा और अनस की वो वीडियो देखकर उनके बारे में बात कर सके। अनस भागता हुआ अंसा के पास आएगा और कहेगा कि अंसा, वो वीडियो सब मेहमानों के मोबाइल पर चल रही है, आखिर ये घटिया हरकत की किसने है, और सबका शक शियान की तरफ जाएगा। अनस भागता हुआ दादा जान के पास जाएगा और कहेगा कि दादा जान, देख रहे हैं आपने मुझे कसम दी थी जिसकी वजह से मैंने ये सच नहीं खोला, और आज फिर शियान ने वो वीडियो सारे मेहमानों के सामने रख दी है। और यहाँ पर दादा जान अनस को अपनी दी हुई कसम से आज़ाद कर देगा और कहेगा कि जाओ जाकर सच बता दो अंसा को। जिसके बाद अनस अंसा के पास आएगा और कहेगा कि वो वीडियो बनाने वाला और उसे वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शियान है। ये सुनने की देर है कि ताई जान और ताया जान के पैरों तले से भी जमीन निकल जाएगी। अंसा सीधी मेहमानों के पास जाएगी और कहेगी कि आप जानते भी हैं कि ये कितने घटिया लोग हैं और आप कितने घटिया लोगों में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। ये इनका बेटा आपके बेटे को ना सिर्फ हिट करता है बल्कि उसे वहीं पर मार कर फेंक कर भाग जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसका बाप अपने भतीजे पर इल्जाम लगाकर उसे जेल करवा देता है ताकि इसका अपना बेटा बच जाए। इतना ही नहीं, जब हमने अनस के लिए खड़े होकर पुलिस के सामने एहतजाज किया कि वो बेगुनाह है और गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, तो उसके बाद इस घटिया लड़के ने क्या किया कि मेरी और अनस की वीडियो बनाकर सबके सामने वायरल कर दी, क्योंकि अनस तो बाहर आ गया था और उसे एक रात जेल में सड़ना पड़ा। इसकी उस घटिया वीडियो की वजह से मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और अनस को मुझसे शादी करनी पड़ी। आप लोग ऐसी फैमिली में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद फहाम की माँ उसी वक्त खड़ी होगी और कहेगी कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने एक दफ़ा फहाम तुमसे कह दिया है, इसी वक्त एंगेजमेंट रिंग उतार कर इस लड़की के मुंह पर मारो। जिसका भाई इतना घटिया है उसकी बहन क्या निकलेगी। जिसके बाद फहाम अपनी अंगूठी उतारेगा और शरीन के मुंह पर मारेगा और कहेगा कि ऐसी लड़की से तो मैं भी शादी नहीं कर सकता। जिसका भाई इतना घटिया है तो तुम कहाँ की अच्छी लड़की होगी, ये काम तुम्हारे भी तो हो सकते हैं शरीन। मुझे लगता है कि यहाँ पर शरीन और फहाम का रिश्ता यहीं पर टूट जाएगा और यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अंसा जाएगी, गन उठाएगी और शियान के सर पर रखेगी और कहेगी कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बहन की तो मैंने अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा दी, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत अफजाई मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। और हो सकता है कि शाजिया बैठकर आंसा से माफी मांगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शरीन की ये घटिया हरकत उसका अपना फहाम से रिश्ता तोड़वा देगी और शियान अब सीधा जेल जाने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अंसा खुद अपने हाथों से शियान की जान ले लेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।